ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਇਲਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਦੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਰੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਲਾਈਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਂਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ? The world of work rapidly changed and employees cannot depend on the same job and working condition for life। ठीक है कि ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰੈਪਿਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੇਮ ਜੋਬ 'ਤੇ ਔਰ ਸੇਮ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। give cause for rapid change and suggest some ways for people to prepare for their future। ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਿਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਸੁਜੈਸਟ ਸਮ ਵੇਜ਼ ਫॉर ਪੀਪਲ ਟੂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਫॉर देयर ਫਿਊਚਰ। ਐਂਡ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਿਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਿਡ ਚੇਂਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਉਂ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2 ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਈਡੀਆਸ ਆਉਂਦੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਰੀਫਰੇਸ ਪਲੱਸ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਟਾਸਕ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਟੂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਟੂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ occupation is changing at a rapid speed and workers are not reliable on the similar position for whole life। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜੋਬ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਕ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਰਡ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੇਂਜਿੰਗ ਐਟ ਦਾ ਰੈਪਿਡ ਸਪੀਡ ਕਿ ਰੈਪਿਡ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਰ ਨੋਟ ਰਿਲਾਏਬਲ ਔਨ ਸਿਮਿਲਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਫॉर ਹੋਲ ਲਾਈਫ, ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਈ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਦ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਿਸ ਰੈਪਿਡ ਚੇਂਜ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਿਡ ਚੇਂਜ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਗਿਵ ਸਮ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫॉर ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਟੂ ਰੈਡੀ ਫॉर देयर ਅਪਕਮਿੰਗ ਟਾਈਮ। ਅਪਕਮਿੰਗ ਟਾਈਮ ਮੀਨਸ ਫਿਊਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਰੈਪਿਡ ਚੇਂਜ ਦੱਸੂਗਾ। ਰੈਪਿਡ ਚੇਂਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਕੀ ਆ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਅਪਕਮਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੀ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਪਲੱਸ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ BP1 ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ BP1 ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਇਸੇ ਦਾ। 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਸਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 5 ਕਨੈਕਟਰਸ BP1 ਦੇ ਲਈ, ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟਸ BP2 ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ 5 ਕਨੈਕਟਰਸ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਟੂ ਐਮਬਾਰਕ ਔਨ, ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਟੂ ਬਿਗਨ ਵਿਦ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਰ ਆਰ ਨਿਊਮਰਸ ਕਾਊਜ਼ ਆਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਜੋਬਸ ਰੈਪਿਡਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਿਊਮਰਸ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਪਿਡਲੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਅਤੇ ਫੋਰਮੋਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਜ਼ ਫੁਲਫਿਲ ਦਾ ਐਵਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਕਿ ਐਵਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਟਾਸਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ। ਟਾਸਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ। ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਉਹ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਸਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਟਾਸਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹਾਊ ਇਟਸ ਵਰਕ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਨੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਟੂ ਇਲੈਬੋਰੇਟਿਡ, ਕਨੈਕਟਰ ਲਗਾਇਆ ਟੂ ਇਲੈਬੋਰੇਟਿਡ
ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के करके, ठीक है, इट इज़ वैरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव ऑन लो पे, ठीक है, टेक्नोलॉजी जिद्दां कि काफ़ी इंक्रीज़ हो गई, ये बहुत मतलब जिहड़ा डिफिकल्ट है, औखा है कि लो जिहड़ी मतलब घट पे ते की आ सर्वाइव करना, ठीक है। दैट इज़ वाई वर्कर्स हैव टू चेंज देयर जॉब्स इन ऑर्डर टू गेट हाई वेजिस। तो हुण देखो आपां दसदा कि जिहड़ियां रिक्वायरमेंट टास्क स्टेटमेंट दे विच दसदा सी कि रिक्वायरमेंट कंप्लीट करन लई, ठीक है। तो हुण आपां दस दित्ता कि क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिहड़ी काफ़ी इंक्रीज़ हो रही हैगी तो ये बहुत औखा है सर्वाइव करना लो पे ते, तां की करदे आ लोकां दी जानी कि रिक्वायरमेंट नहीं, लो पे ते की है रिक्वायरमेंट्स जिहड़ियां कंप्लीट नहीं हुंदियां। दैट्स वाई जिहड़ा वर्कर्स हैगे उन्हां नूं चेंज करनी पैंदी है अपनी जॉब इन ऑर्डर टू एक कंपलैक्स सेंटेंस अपने कोल काहदे लई हाई वेजिस दे लई, ठीक है। उस तो अगे अपने को एग्जाम्पल फॉर इंस्टांस, ठीक है, एग्जाम्पल दे विच लगाना है अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय द टाइम्स ऑफ इंडिया फाउंड दैट कि जिहड़ा कुछ भी है तुसी न्यूज़पेपर का नेम भी हो सकता, मैगजीन कुछ भी है, ठीक है, कि जिहड़ा सर्वे वो कंडक्ट किया गया टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा फाउंड दैट 60% इंपलॉयज़ चूज टू चेंजिंग देयर जॉब्स इन एवरी ईयर एज दे हैव लैस सैलरीज। हर एक साल की वो चेंज करते हैं क्योंकि उन्होंने जिहड़ी मतलब कि प्रैजेंट जॉब हैगी आ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ सैलरी लैस हैगी दैट्स वाई कि वो प्रैफर करते हैं हर साल कि एक मतलब इस इच्छा दे विच कि वधिया सैलरी मिलूगी, वो हर साल अपनी जिहड़ी जॉब चेंज करते हैं 60% इंपलॉयज़, ठीक है। तो हुण आपां इहदा रिजल्ट कड्डांगे कि इहदा ओवरऑल रिजल्ट की निकलदा, ठीक है। एज अ रिजल्ट दे आर कंपील्ड टू शिफ्ट जॉब्स डिलीवरली, ठीक है, कि एक ही है जॉब्स जो रिजल्ट की निकलता है उन्होंने जो अपनी जॉब्स मजबूर हो जाते हैं अपनी जो जॉब्स में शिफ्ट करने के लिए। ये हो गया अपना रिजल्ट, ठीक है। हुण मेन सी अपना जो रीजन दसना सी क्यों चेंज करते हैं, हुण इस चीज़ का सल्यूशन दसना कि वो फ्यूचर दे विच जिहड़ा अपने आप नूं किद्दां प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, इंपलॉयज़। हुण सल्यूशन वाल आने आ, फिर 5 पॉइंट्स तुसीं BB2 के लिए कवर करने हैं, ठीक है। ये अपना प्रॉपर स्ट्रक्चर है। हाउ एवर, ठीक है, बेसिक लाइन लगानी है। हाउ एवर कनैक्टर यूज़ किया क्यों, हाउ एवर इसलिए लगाया क्योंकि पहले विच रीजन दस रहे, दूसरे विच सल्यूशन दसने, अगर दोनों च सेम चीज़ दसनी होंगी तो सेम लगा देना सीधा, फर्दर मोर ओवर इदां दे कनैक्टर्स लगा देने सीगे, ठीक है। तो कनैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कनैक्टर्स मतलब कि एक हैबिट बना लो अपनी कि जेह्ड़े जरूर यूज़ करने हैं टास्क दे विच, क्योंकि कनैक्टिविटी लैके आउंदी आ एंड ऑल्सो जिहड़ा तुहाडा ऐसे हैगा वो वधिया लगदा लिखिया, ठीक है। There are numbers of ways people can prepare themselves to deal with this technical era more efficiently, ठीक है, कि वधिया तरीके दे नाल टैक्नीकल जिहड़ा एरा हैगा उहदे नाल फेस करन दे लई, डील करन दे लई जिहड़े लोकां कोले काफ़ी वेज हैगे आ, ठीक है, वो अपने आप नूं प्रिपेयर कर सकदे आ। उस तो बाद कि फर्स्टली कनैक्ट लगा दिता, फर्स्टली कि वे किहड़ा हैगा, ठीक है। इज़ इट इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक ही जिहड़ा इंपॉर्टेंट हैगा टू continually update the latest information about technology rather than using old style of work। टास्क स्टेटमेंट की देती है कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यूली अपडेट द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, कि जी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हैगी टेक्नोलॉजी की ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ अपडेट रहना, ठीक है, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी की नवी इन्फॉर्मेशन डे बाय डे आ रही हैगी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ खुद ਨੂੰ अपडेट रखिए, ठीक है, लोग अपने आप ਨੂੰ अपडेट रखन तो ये चीज़ जी बेनीफिशियल होगी रैदर दैन यूजिंग ओल्ड स्टाइल ऑफ, रैदर दैन भी कंपलैक्स सेंटेंस है अपने को कि मतलब यूजिंग ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ मतलब पुराना स्टाइल ही अपना यूज़ करना काम वाला, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ है कि आप जी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हैगी टेक्नोलॉजी की ਉਹਦੇ ਨਾਲ की अपडेट रहिए, ठीक है। ये होगी टास्क स्टेटमेंट। हुण इनू एलैबोरेट करना तो पहला टू एलैबोरेट इट लगाया सी, हुण दोबारा नहीं लगावांगे, कनैक्टर रिपीट नहीं होनी, कनैक्टर वकैब मतलब ट्राई करिया करो कनैक्टर्स, ठीक है, आइडियाज़ वगैरह कुछ भी अपना रिपीट ना हो टास्क के जिन्नी वेरीएशन आऊगी, और सेंटेंस वेरीएशन भी रिपीट नहीं होनी चाहिए, लाइक जो तुम एक टाइप का सेंटेंस बना लिया उन्होंने दोबारा ना ट्राई करो कि दोबारा ना आए, ठीक है, मतलब रैपीटिशन बिल्कुल नहीं करनी। टू एक्सप्लेन इट कनैक्टर यूज़ किया, कॉमा यूज़ किया, इंस्टैड ऑफ हैंड स्किल्स, ठीक है, इंस्टैड ऑफ भी अपने को कंपलैक्स सेंटेंस आ कि अपने को ओनली जोड़े हैंड स्किल्स जड़ियाँ यूज़ करने की बजाय, ठीक है, पीपल शुड बी, ठीक है, शुड बी मतलब होना चाहिए है कंप्यूटर लिटरेट फॉर मेकिंग मॉडर्न वर्किंग इन्वायरमेंट ईजीयर, कि जो मॉडर्न वर्क इन्वायरमेंट है ना उन्होंने ईजी बनाने सौखा करने अपने लिए कन्वीनियंट करने के लिए की है कंप्यूटर लिटरेट होना जरूरी है, उही हैंड स्किल्स जड़ियाँ यूज़ करनिया। फॉर एग्जाम्पल अगर जे राइटिंग आप कर रहे हैं, ठीक है, हैंड राइटिंग तो उन्होंने छड्ड के की चाहिए आपको टाइपिंग की जी मतलब ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ अपडेट रहना चाहिए, ठीक है, आप ये चीज़ दसी है मेनली।
फॉर एग्जाम्पल हुण इहदे विच एग्जाम्पल ऐड करनी है। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे फाउंड दैट, ये जिहड़ा सर्वे ने फाउंड किया कि इंप्लॉयज़ विद टैक्नीकल नॉलेज आर एबल टू गेट हायर सैलरीज एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, एज कंपेयर टू कंपलैक्स सेंटेंस है, जो कंपैरिजन करते होंगे उदों लिखते होंगे। ठीक है, तो आपां की किया हैगा, एक सर्वे ने ये चीज़ दसी है कि इंप्लॉयज़ विद टैक्नीकल नॉलेज, जिन्होंने मतलब टैक्नोलॉजी की काफ़ी नॉलेज हैगी आर एबल टू गेट हायर सैलरीज, कि वो एबल होंगे है, जॉब होंगी है ज़्यादा सैलरीज लैन दे एज कंपेयर टू अदर, होरां दे नाल जिहड़े मतलब नहीं अपडेट हैगे। ठीक है, हैंस इट वुड बी हैल्पफुल फॉर देयर करियर, कि वो की उन्होंने करियर के लिए की है हैल्पफुल हैगा। ठीक है, तो मतलब कि सोल्यूशन ये दिता कि अगर उन्होंने जानी कि सैलरीज वगैरह वधिया मिलणगी अगर जो कंप्यूटर लिटरेट होणगे। ठीक है, टैक्नोलॉजी की नॉलेज चाहिए, ये सोल्यूशन दिता कि वो कितना फ्यूचर के विच अपने नूं प्रिपेयर कर सकती है। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम होगी एंड एक सोल्यूशन, एक सॉरी रीजन हो गया एंड एक अपने को सोल्यूशन हो गया। ठीक है, रीजन सोल्यूशन ऐसे सी अपने को हुण इहदा की आ आपां जिहड़ा कनक्लूजन देवांगे। ठीक है, तो कनक्लूजन दे विच की लिखते हैं वो देखते हैं। टू सम अप, टू कनक्लूड इट, इन कनक्लूजन, इदां दे कनैक्टर यूज़ कर सकते हैं कनक्लूजन लिखने के लिए। ठीक है, ऑल्दो पीपल हैव फेसिस सैवरल चेंजिस। ठीक है, कि भावें कि लोग जोड़े काफ़ी जड़ियाँ चेंजिस जड़ियाँ फेस कर रहे हैं इन देयर वर्क कंडीशन, काम दे विच। ठीक है, येट सम सोल्यूशन आर अवेलेबल टू प्रिपेयर दैमसैल्फ फॉर मॉडर्न वर्किंग कंडीशन। ठीक है, कि मॉडर्न वर्किंग कंडीशन के लिए खुद को प्रिपेयर करना की है सोल्यूशन हैगे वो। ठीक है, इन नीयर फ्यूचर एज मैंशन इन द एसे, कि इन फ्यूचर के की है वर्किंग कंडीशन के लिए प्रिपेयर रहना। ठीक है, वो सोल्यूशन है जिदा कि एसे की है मैंशन किए है एज मैंशन इन द एसे, जिदा एसे के मैंशन किए हैं। ठीक है, और अगर तुम ये रीफेस करके वो जो लिखना है सोल्यूशन, तुम वो भी दस सकते जो सोल्यूशन तुम दस के आए हैं। ठीक है, तो उन्होंने रीफेस करके भी लिख सकते हैं एज मैंशन इन दी एसे की जगह से। ठीक है, तो और तुम ये भी चीज़ लिख सकते हैं एज मैंशन इन द एसे, मतलब जो तुम एसे गल करके आए हो अगर तुम उस चीज़ को रीफेस करके लिखना तो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होंदा अपना फुल स्ट्रक्चर जोड़ा कि अपने को रीजन एंड सोल्यूशन ऐसे होंदा। ठीक है, तो ट्राई करो अपनी जो राइटिंग इंप्रूव करने के लिए। टिप्स एंड ट्रिक्स जस्ट यही ने कि तुसी की कंपलैक्स सेंटेंस ऐड करो, पैसिव वॉइस ऐड करो। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस ऐड करो, क्वेश्चन फॉर्म करो, सिंपल वेरिएशन। ठीक है, मतलब वेरिएशन जिन्नियां भी तुसी ऐड कर सकते हैं। एक तो वेरिएशन ऐड करो जी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, थोड़ी राइटिंग इंप्रूव करने लिए 100% ये चीज़ हैगी। अगर तुसी सिंपल टास्क लिख रहे हो और वेरिएशन ऐड कर दो, ठीक है, तो थोड़ा देखना तुसी 1 बैंड एटलीस्ट जोड़ा कि इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, विदाउट एनी कोई भी मतलब कि किसी भी किस्म की ज़्यादा हार्ड वर्किंग की तुसी जस्ट क्या वेरिएशन ऐड करो और तुसी खुद इंप्रूवमेंट देखोगे कि टास्क कितनी इंप्रूवमेंट हुई। ठीक है, और सैकेंड जो मेन पॉइंट हैगा अपना स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉलो करो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, जिन्ना वधिया ऐसे ऑर्गेनाइज करोगे उन्ने ही वधिया स्कोर आउणगे। ठीक है, अगर तुसी पता ही नहीं चल रहा कित्थों किहड़ी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैगे हो। ठीक है, कन्फ्यूजिंग ऐसे नूं जिहड़ा तुसी लिखदे हैगे तो वो चीज़ बिल्कुल जिहड़े स्कोर डिक्रीज कर दी। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर लो। ठीक है, एक स्ट्रक्चर नूं फॉलो करो, ये नहीं गा कि एक बार ये वाला कर लिया एक बार ये वाला कर लिया। ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नूं फॉलो करो एंड डेली बेसिस ते उन्होंने हैबिट बनाओ अपनी। ठीक है, और प्रॉपर जिहड़ा उन्होंने एलैबोरेट करो। और अपने को जो तीसरा पॉइंट ये चीज़ हैगी कि जो आइडियाज़ लिखने है तो वो की है रिलेवेंट होने चाहिए एंड उन्होंने की हैगा फुल एलैबोरेशन की होनी चाहिए। इन्नी एलैबोरेशन की होनी चाहिए कि जो आप लिख रहे हैं। ठीक है, वो की है मतलब एग्जामिनर नूं समझ आ जाए, जो अपने माइंड के आइडिया चल रहे हो एग्जामिनर नूं समझ आ जाए बस। ठीक है, तो उस तो बाद वकैब। ठीक है, तो वकैब की एक वधिया सैंपल आंसर पढ़िया करो। ठीक है, वधिया सैंपल आंसर लिया करो तो वो चीज़ के नाल की है जी वकैब इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, जस्ट 1 मंथ राइटिंग का। ठीक है, राइटिंग ते ज़्यादा टाइम स्पेंड करती मतलब ओवरऑल आइस की गल ही करूँगी। ठीक है, कि अदे तो 1 मंथ तो ज़्यादा जो टाइम स्पेंड करना कुछ नहीं है। ठीक है, जोड़े वधिया स्टूडेंट्स है जिन्होंने पकड़ है इंग्लिश से। ठीक है, तो वो की है वधिया 1 मंथ के अपनी राइटिंग जी इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट राइटिंग के करना है 1 मंथ के ये चीज़ करो, एक तो वेरिएशन सीखो। ठीक है, मतलब हर डे की है वेरिएशन, कोई एक नवी वेरिएशन सीखो। ठीक है, वेरिएशन सीख लो, मोर दैन 30 टाइप्स के जोड़े सेंटेंस सीख लो दोनों टास्क के लिए। ठीक है, एक तो वेरिएशन हो गया और वकैब थोड़ी अपने आप ही इंप्रूव हो जानी अगर तुहानूं डेली बेसिस से एक वधिया सैंपल आंसर मिलता है। ठीक है, अगर तुहानूं वधिया सैंपल आंसर नहीं मिलता फिर वकैब का नहीं कुछ कह सकते। अगर तुहानूं जिहड़ा सैंपल आंसर वधिया मिलता तो वकैब अपने आप इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, और स्ट्रक्चर तुसीं एक प्रॉपर जिहड़ा हर एक ऐसे का स्ट्रक्चर तुहानूं इस चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ तुसीं चैक कर सकते हैं कि किहड़े लिए किहड़ा स्ट्रक्चर आप यूज़ करना किहड़ी टाइप के लिए, तो वो चीज़ करो। ठीक है, ये पॉइंट्स फॉलो करो और डेफिनेटली जिहड़े थोड़े स्कोर इंप्रूव होणगे एंड तुसीं अपनी राइटिंग खुद भी चैक कर सकते हैं। देखो अपने को एक सैंपल आंसर पिया हो एक 6 बैंड वाला और एक 8 बैंड वाला, अगर कोई
स्टूडेंट की जी है ना मतलब कि ये हैगा कि 6 बैंड का वाला आप लिखता है, ठीक है। तो वो की है जो आप 8 बैंड वाला दिखावे ना तो मिनट स्टूडेंट भी आप जज कर लूगा कि ये जो मैं लिखदा वो तो वधिया है, ठीक है, या फिर उस तो प्लस पॉइंट वाला है, ठीक है। तो ये की मतलब है जो तुसी अपनी इंप्रूवमेंट पा कर लोगे राइटिंग में, थोड़ा अपने आप ही फील होने लग जाएगा कि हुण मैं जो टास्क वधिया लिखन लग गया, ठीक है। तो इस चीज़ के नाल की है तुसी अपनी इंप्रूवमेंट कर सकते जो थोड़ा अपने आप कॉन्फिडेंट हो गए, ठीक है, तुसी अपने आप उदों थोड़ा जो पता चलेगा कि थोड़ा जी राइटिंग इंप्रूव हो गई। तो आई होप अज की वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।